Hello everyone. Today I am going to start new chapter accounting for partnership firms. In this chapter we will focus only the fundamental part of this chapter. This chapter is very much important from the examination point of view and also from the future point of view. Definition of the partnership. This definition you have already studied in the class 11th in the subject business studies. So in a quick revision we start with the definition of the partnership. Definition of the partnership is given in the section 4 of the Partnership Act 1932. It says relation between persons who have agreed to share the profit of business carried on by all or any one of them acting for all. So on the basis of the definition given in the Partnership Act 1932, we can list out some essential features. Like first feature is two or more persons. It means minimum two persons are required to establish a partnership firm. So minimum two persons are required and the maximum 50 persons can be in a partnership. And the most important thing, these maximum number of partners not given in Partnership Act 1932. This is given in the Companies Act 2013. Means the Companies Act 2013 gives the power to the central government to decide the maximum number of partners. So central government has prescribed the maximum number of partners in a firm to be 50. So right now the maximum number of the partners in the partnership firm can be 50 only. Second, the essential feature of the partnership is that there must have an agreement, and the agreement can be oral or written also. But when the agreement is done in the written form, it becomes the partnership deed. Here you can see on your screen the written agreement among the partner is known as a partnership deed. Third feature, there must have a business and the business must be engaged in the lawful activities. Mutual agency. Here on your screen you can just see, if you just see the definition, there is the word given business carried on by all or any one of them acting for all. It states this is the mutual agency among the partner. Mutual agency means mutual agency means the partner can act as a principal and as an agent as well. So in the both the cases, suppose if the partner is working as an agent, so he represents the other partners and thereby binds them through his act. Means if the partner has taken any decision, so other partners, they cannot say that they are not responsible for the decision, the agreement done by the other partner. In the same way, if the partner is acting as a principal, so he is also bound by the act of the other partner. As a principal means if he is the whole and sole in charge, but other partners, they have taken any decision, they have made any agreement with the third party, he will also held responsible. Sharing of profit means whatever the profit will be there or the loss will be there will be shared among the partner in their agreed ratio. But it's not compulsory that all the partners must share losses. In sometimes there may be cases, in the further lecture you will also focus, you will also study that sometimes the partner may not be allowed to share the loss. Yeah,
Simply we can just say sometimes the partner is given a guarantee to share the profit only. This is the separate topic, will be discussed later in the coming lecture also. Nature of the partnership from the legal point of view, partnership is not a separate legal entity. That's why the liability of the partner is unlimited. Unlimited means the personal property will be taken to settle the amount to the third party, yet to settle the amount to the creditors. From the accounting point of view, the partner is a separate legal entity. Means from the legal point of view, partnership is not a separate legal entity, and because of this, the liability of all the partner is unlimited. Rights of the partner. These are some common rights given over the every partner has the right to participate in the management of the business. Number 2, every partner has the right to be consulted about the affairs of the business. Number 3, every partner has the right to share profit or loss with others in the agreed ratio. These are the very common rights. A partner has the right not to allow the admission of a new partner. This is the important one. If any partner refuses to allow that with regards to the admission of the new partner, so remaining partner cannot give the entry to the other person, entry to the new partner in the business firm. Means each and every partner, suppose 5 partners are working in a partnership firm, all the 5 partners, they must give their consent to allow the new partner to come and join in the business. Next, after giving the proper notice, a partner has the right to retire from the firm. Means a partner can take the retirement from the firm by giving the proper notice. As we have I already explained to you all, partnership deed means when the agreement is done in the written form, then it becomes the partnership deed. So simply we can define the partnership deed. A document which contains terms of the agreement is called the partnership deed. So some common contents of the partnership deeds are here on your screen. You can just see these are the common things. If you just use your common sense, you can also come to know what can be the common contents of the partnership deed. Number 1, name and address of the firm and its main business, and the name and addresses of all the partners, amount of the capital to be contributed by each partner, the accounting period of the firm, the date of the commencement of the partnership, rules regarding operation of the business. These are the very common things. If you apply your common sense, you can easily come to know what the contents can be included in the partnership deed, like rate of interest on the capital, loan, drawings, mode of auditors. These are the common things. So I am not going to read line by line. You can pause over there and check the list of the content of the partnership deed. But one point I would like to tell you all, partnership deed generally covers all the affecting all the matters which are related to the partnership. But sometimes if there is no express agreement on certain matters, suppose there are some matters and how to deal with the matters is not given in the partnership deed, then the provisions of the Indian Partnership 1932 shall apply. यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस है, जनरली पार्टनर्स है फुल राइट, पार्टनर्स को पूरा अधिकार है कि पार्टनरशिप डीड में सारी बातें वो लिख सकते हैं कि किसी डिस्प्यूट को अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी पार्टनर्स के बीच में तो उसे कैसे सेटल किया जाए। लेकिन अगर सपोज करिए कभी ऐसा हो जाता है कि सब मैटर्स या इस तरह समझें कि कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पर नहीं लिखी गई पार्टनरशिप डीड में, और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इन डेट केस प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल अप्लाई।
तो वहाँ पर जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो भी प्रोविजंस हैं वो लागू कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए कहा ही जाता है कि इट इज़ एसेंशियल बट द डिजायरेबल, इट इज़ नॉट एसेंशियल बट द डिजायरेबल टू हैव अ पार्टनरशिप। इसीलिए कहा जाता है कि ये एसेंशियल तो नहीं है लेकिन डिजायरेबल है कि देयर मस्ट हैव अ पार्टनरशिप डीड। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि देयर मस्ट हैव अ पार्टनरशिप डीड, की एसेंशियल नहीं है लेकिन कम से कम ज़रूरी है कि अगर पार्टनरशिप डीड होगी तो वो ज़्यादा फ़ायदे में रहेगी, ताकि कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो उसके अकॉर्डिंग सेटल किया जा सके। लेकिन जैसे मैंने बताया अभी कि प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट रेलेवेंट फॉर द अकाउंटिंग, सो provisions of the partnership relevant for the accounting means these are the provisions and these provisions will be applicable in that case when clearly not indicated in the partnership deed। ये provisions तब लगेंगे जब आपने partnership deed में कुछ clearly नहीं बताया। जब नहीं आपने clearly बताया then the provisions of the partnership act 1932 will be applicable। And what are the common cases? Like the profit sharing ratio, generally the profit sharing ratio is given in the partnership deed। पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख दिया जाता है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट किस तरह से शेयर किया जाएगा। लेकिन अगर नहीं लिखा है देन द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट सेज कि द पार्टनरशिप, तो यहाँ पर क्या कहेगा प्रोविजन कि इक्वली जो भी प्रॉफिट होगा वो बांट दिया जाएगा, जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो इक्वली बांट दिया जाएगा। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, द डीड इज साइलेंट। साइलेंट का मतलब यहाँ पर कि डीड में कहीं पे कुछ लिखा नहीं है कि प्रॉफिट और लॉस कैसे बटेगा। सो यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट के सारे रूल लग जाएंगे और ये कहा जाएगा कि अब जो डीड अगर साइलेंट है तो जो पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वली बांट दिया जाएगा। फिर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म, फिर चाहे आपने कितनी भी कैपिटल लगाई हो, मान लीजिए किसी पार्टनर ने 1 लाख रुपए लगाया है और किसी पार्टनर ने 5 लाख रुपए लगाए हैं, तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी ने 1 लाख लगाया या 5 लाख, जो भी प्रॉफिट या लॉस हो को इक्वली बांट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कहीं पर भी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। सेकेंड वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम थिंग, इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इन द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में कहीं पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, और सिंपली वी कैन से इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सिंपली नो पार्टनर विल बी अलाउड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और वैसे भी एक आप अगर स्क्रीन पे देख रहे हो तो लिखा भी है कि नो पार्टी एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम इन द फॉर्म एज अ मैटर ऑफ राइट। ये कोई उनका अधिकार नहीं है कि उन्होंने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करिए तो उनको इंटरेस्ट दिया ही जाएगा। इंटरेस्ट केवल एक ही केस में पे किया जाएगा जब उन्होंने बिल्कुल क्लियरली एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है तो उस केस में उन्हें इंटरेस्ट नहीं पे किया जाएगा। मतलब अगर डीड साइलेंट है ऑन दिस इश्यू तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी पेड। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन द ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स इफ देयर इज नो मेंशन इन द डीड। अगर डीड में कहीं पर नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इन दैट केस नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर मान लीजिए किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, लोन एडवांस किया है, तो उसे जो भी इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 6% पर एनम के रेट से पे किया जाएगा। लेकिन 6% पर एनम के रेट तब लिखा होगा जब डीड में नहीं लिखा है। अगर डीड में लिखा है तो जो डीड के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग पे कर दिया जाएगा। लेकिन इफ़ द डीड इज साइलेंट, अगर डीड साइलेंट है तो उस केस में मिनिमम कम से कम 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया जाएगा। रेम्युनरेशन फॉर द फर्म्स वर्क, अगर कोई पार्टनर है फर्म में काम भी करता है और वो सैलरी की डिमांड कर रहा है, लेकिन इट शुड बी गिवन इन द पार्टनरशिप डीड, वो पार्टनरशिप डीड में लिखी होनी चाहिए। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इस केस में कोई भी सैलरी
पार्टनर को नहीं पे करी जाएगी। मीन्स नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी और अदर रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म अनलेस देयर इज अ प्रोविजन फॉर द सेम इन द पार्टनरशिप डीड। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर सैलरी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, डीड साइलेंट है, उस केस में कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं पे किया जाएगा। तो क्विकली हम ये समझ सकते हैं कि आप यहाँ पर अगर देखें तो क्विकली हम ये समझ सकते हैं, इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, इफ़ डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग द PSR देन द PSR विल बी इक्वल। इफ डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग द interest on capital means no interest on capital will be allowed. Interest on drawing, no interest is to be charged if the deed is silent. और डीड अगर साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर, पार्टनर ने कोई उधार दिया है तो 6% पर एनम से उसको ब्याज दे दिया जाएगा। कोई अगर रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क है, डीड साइलेंट है, तो कुछ भी रेम्यूनरेशन नहीं पे किया जाएगा। यहाँ एक नोट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये एक तरह से लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर भी है। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर है, ड्राइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिम या हर सेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, कोई ऐसे ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट या फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके कोई प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा उसे फर्म को वापस करना पड़ेगा, क्योंकि दिस प्रॉफिट हैज़ बिन अर्नड जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द फर्म। ये फर्म की वजह से ही, ये बिजनेस की वजह से ही आपको प्रॉफिट मिला है, तो ये प्रॉफिट बिजनेस का ही है और ये वापस करना पड़ेगा। भले ही आपने कमाया है लेकिन आपको बिजनेस को वापस करना पड़ेगा। दूसरा, इफ़ द पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर, अगर कोई पार्टनर सेम नेचर का कोई बिजनेस पार्टनरशिप फर्म के पैरेलल कोई सेम नेचर का बिजनेस करता है और कम्पीट कर रहा है उस फर्म से, तो भी उसे जो भी प्रॉफिट होगा उसे फर्म को वापस करना पड़ेगा। So this can also be understood as the liability of the partner. कुछ अलग प्रोविजंस हैं या सब इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1, अगर सारे के सारे पार्टनर एग्री हो जाते, इफ़ ऑल द पार्टनर एग्री, तो माइनर को भी एडमिट कर सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। मीन्स माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड फॉर द लॉस ऑफ द पार्टनरशिप। इसके बाद इफ़ अ पर्सन मे बी एडमिटेड, means a person may be admitted as a partner either with the consent of all the existing partner or in accordance with the agreement among the partner। देखिए पहले मैंने बताया था कि सारे के सारे पार्टनर्स की कंसेंट जरूरी है फॉर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, या फिर आप एग्रीमेंट में कहीं पर लिख दीजिए कि पार्टनर कैन बी एडमिटेड विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। और अगर एग्रीमेंट नहीं कहीं पर लिखा हुआ है तो सिंपली ऑल द पार्टनर्स means the consent of all the partners are required to give the admission to the new partner. Here partner retire हो सकता है with the consent of all the partner by giving the proper notice, या फिर एग्रीमेंट में उसके रिगार्डिंग रूल लिखा होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म जो है वो ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है। पार्टनर्स चाहे तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या नहीं भी करा सकते, लेकिन करा लेंगे तो इट विल बी बेनिफिटेड फॉर द पार्टनर्स ऑल्सो। अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म, और फॉर्म ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फॉर्म ऑटोमेटिकली डिजॉल्व कर जाएगी, या फिर अलग से एग्रीमेंट में कुछ इसके बारे में प्रोविजन दिया गया हो। कुछ स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ द पार्टनरशिप, ये आपका न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी जो आपने इससे पहले सीखा था वो थ्योरेटिकल पार्ट था, यहाँ से न्यूमेरिकल पार्ट आपका शुरू हो जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉर द पार्टनरशिप ऑफ सिमिलर, ये जो देखिए जो भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप ने भी किया, लेकिन थोड़े से अंतर होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, सिंगल ओनर होता है, तो कैपिटल भी वो अकेले ही लगा रहा है, प्रॉफिट भी वो अकेले ही शेयर करेगा। डेट्स वाई कुछ चीज़ें हम लोग वहाँ पे नहीं करते हैं, मुझे यहाँ पे हमें सीखनी है। एक तो मेंटेनेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना अलग से सीखेंगे। सपोज करते हैं 3 पार्टनर हैं, तो यहाँ टेबुलर फॉर्म में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, मतलब पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी का एक कॉमन अकाउंट बना लिया जाएगा जो टेबुलर फॉर्म में होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर, इसके लिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जो भी आपको अलग से लेक्चर में कवर किया जाएगा। अभी इस लेक्चर में केवल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कि हमें क्या क्या करना है, बाकी सेपरेट लेक्चर्स आपके हर टॉपिक के लिए अलग अलग
समझाए जाएंगे, आपको हर लेक्चर में अलग अलग समझाया जाएगा। एडजस्टमेंट फॉर द रॉन्ग एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट इन द पास्ट, अगर कुछ गलती हो गई है प्रॉफिट को बांटने में तो उसके लिए भी कुछ एडजस्टमेंट करना हम लोग सीखेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, जो आप शुरुआत के 3 पार्ट देख रहे हैं, जैसे मेंटेनेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर, और थर्ड आपका एडजस्टमेंट फॉर रॉन्ग एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, ये हम लोग इसी चैप्टर में कवर करेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन ये आपके नए चैप्टर होंगे, वो अगले लेक्चर्स में कवर करे जाएंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करे जाएंगे। तो पहले हम लोग सीखते हैं यहाँ पर कि हाउ द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स इज प्रिपेयर्ड। So there are the two methods, दो मेथड हैं, there are the two methods to prepare the capital accounts of the partner. One is the fixed capital method and the second one is the fluctuating capital method. पहले मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को समझाऊंगा, देन मैं आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड को समझाएंगे। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आना सीखेंगे अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यहाँ पर एक स्क्रीन देखिए, आपका एक आपके स्क्रीन पे एक फॉर्मेट आया है। ये फॉर्मेट जो लिया गया वो केवल एक पार्टनर को मानकर लिया गया है। जब हम लोग प्रैक्टिकल करना सीखेंगे तो ये अमाउंट के कॉलम बढ़ते चले जाएंगे एज पर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पार्टनर्स। मान लीजिए 2 पार्टनर है तो अमाउंट के 2 कॉलम हो जाएंगे, 3 अगर पार्टनर है तो अमाउंट के 3 कॉलम हो जाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं, अच्छा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसको याद करने का। ये कैपिटल अकाउंट है तो इसका क्रेडिट बैलेंस है ये आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर अलग से समझा देता हूँ। ये जो बैलेंस बीडी है ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है, ये ध्यान रखिएगा, ये ओपनिंग कैपिटल है। ये अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर दिया है और कैपिटल लेकर आया है, ये सैलरी है, अगर किसी पार्टनर को सैलरी भी मिल रही है, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज कर रहे हैं, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट जो प्रॉफिट हुआ है जो उन्होंने आपस में बांटा है, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पार्टनर को जो कुछ भी मिलने वाला है वो सारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएगा, क्योंकि ये फर्म की लाइबिलिटी है, फर्म को पे करना है पार्टनर्स को। तो फर्म को क्या क्या पे करना है पार्टनर्स को, फर्म को पैसा देना है ओपनिंग बैलेंस, जो भी उनका ओपनिंग बैलेंस है। अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगा ली तो ये भी फर्म को वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को मैंने शुरुआत में बनाया था कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों को अलग अलग माना जाता है। क्लास 11 में आपने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रिपेयर किया जाता है। तो फर्म को पार्टनर को वापस करना है, क्या क्या वापस करना है। नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस है, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करती है तो वो किसी पार्टनर ने कोई काम किया है तो उसकी सैलरी अगर बनती है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अगर ले रहे हैं तो उनको भी अलाउ किया जाएगा। ये प्रॉफिट है ये फर्म को पार्टनर्स को पे करना है। यहाँ जितना भी पार्ट आप देख रहे हैं ये सारा का सारा पार्ट फर्म को पार्टनर को पे करना है। ध्यान रखिएगा, फर्म देगी पार्टनर्स को। और यहाँ से ये लाइबिलिटी फर्म की कम हो रही है। कैसे कम हो रही है, अगर मान लीजिए किसी पार्टनर ने ड्राइंग कर लिया, ड्राइंग्स हैं, तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी, मतलब फर्म की लाइबिलिटी कम हो जाएगी। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर चार्ज किया गया तो वहाँ से भी फर्म की लाइबिलिटी कम हो जाएगी। कोई लॉस हुआ है तो वहाँ से फर्म की लाइबिलिटी, तो ये आपका बैलेंस निकल आएगा आपका। सिंपली ये वो पैसा होगा जो एक अमाउंट पता लग गया कि किस पार्टनर को कितने रुपए फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर पे करने थे, या फर्म की लाइबिलिटी कितनी बनती है। तो ये आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। इसके बाद जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड सीखेंगे तो दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम 2 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। 1 इज़ द पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ देख सकते हैं ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और सेकंड वन इज़ द पार्टनर करेंट अकाउंट। कुछ ज़्यादा अंतर, इसीलिए मैंने आपको पहले फ्लक्चुएटिंग मेथड सिखाया ताकि वहाँ से आप को रिलेट कर सकें। फिक्स्ड मेथड में 2 अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पर हमने एक ही अकाउंट बनाया था कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हम 2 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। आप देख सकते हैं
कैपिटल अकाउंट में ये आपकी ओपनिंग बैलेंस है, ये जो और ये कैपिटल जो एडिशनल इंट्रोड्यूस करी गई है, और ये कैपिटल जो विड्रॉ कर ली है पार्टनर ने, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। मीन्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट में जो ट्रीटमेंट होगा केवल एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस कर दी गई है, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी गई है या कैपिटल विड्रॉ कर ली गई है, तो इसी कैपिटल ट्रीटमेंट किया जाएगा। बाकी इससे पहले का आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना भी ट्रीटमेंट आपने किया था, यहाँ से केवल फ्लक्चुएटिंग मेथड कैपिटल मेथड में से आप केवल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी वो हटा दीजिए, और जो कैपिटल विड्रॉ कर लिए वो हटा दीजिए। बाकी सारा का सारा एज इट इज रहने वाला है। यहाँ देख सकते हैं अपना, ये आप देख लीजिए, ये सेम रहेगा आपका करंट अकाउंट। ये ओपनिंग बैलेंस हो गया आपका, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, और ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस नहीं, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। इसके बाद ये प्रॉफिट है आपका, जो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बनकर निकलेगा। डेबिट बैलेंस भी आ सकता है करंट अकाउंट में, देखिए डेबिट बैलेंस तो कैपिटल अकाउंट में भी आ सकता है। ये ड्राइंग्स है आपका, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर आप दोनों को कंपेयर करके देखेंगे, पॉज करके थोड़ा समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों अकाउंट में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो वहाँ पर कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, फ्रेश कैपिटल जो उसने एडिशनल कैपिटल दिए, और कैपिटल जो उसने विड्रॉ कर लिए, बस इतना ही लिखा गया। बाकी सारे के सारे जो आइटम्स हैं वो आपके करंट अकाउंट में एज इट इज आके जो आपने फ्लक्चुएटिंग मेथड में लिखा था, तो दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि बताया शुरुआत में आपको बताया था मैंने, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, सिंगल ओनर होता है, सारा प्रॉफिट खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, सारा प्रॉफिट खुद ही ले लेता है। कि यहाँ पर प्रॉफिट जो भी होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अ सेपरेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड दैट इज नोन एज अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये जो अकाउंट है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। क्या क्या आने वाला है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो पार्टनर को मिलने वाला है वो सब कुछ यहाँ पर आने वाला है। जैसे पार्टनर क्या क्या लेगा, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी भी चार्ज कर सकता है, पार्टनर अगर कोई काम किया है, सेल कराई है, उसके बदले में कमीशन भी चार्ज कर सकता है, और पार्टनर ने अगर कोई विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए तो उस पर इंटरेस्ट जो चार्ज करी गई है फर्म के द्वारा वो फर्म को पे करना पड़ेगा। तो सिंपल है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस है आपका, ये आपका नेट प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल कर आएगा, प्रॉफिट हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जितने भी आप टॉपिक देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये अलग से लेक्चर में कवर करे जाएंगे, इनकी कैलकुलेशन थोड़ा सा सीखेंगे हम लोग अगले लेक्चर्स में। सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर एंड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यही सारी कैलकुलेशन है जो आपको अभी याद भी रखनी है, और हम लोग फर्दर लेक्चर में कमिंग लेक्चर्स में उसको डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है, सिमिलर लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। ये सारे फर्म के एक्सपेंसेस हैं तो प्रॉफिट कम हो रहा है, लेकिन ज़रूर याद रखिएगा ये नेट प्रॉफिट है, इसमें जो आप आइटम्स देख रहे हैं इनका नेचर थोड़ा सा अलग है। नेचर अलग क्यों, क्योंकि इनका जो नेचर है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाला है, जो हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। वो देख लीजिए यहाँ पर चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट एंड द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, यहाँ से अच्छे समझ लेते हैं। चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है इट्स अ एक्सपेंस फॉर द फर्म इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस ही क्यों ना हो जाए, फर्म ने प्रॉफिट कमाया है या लॉस अगर हो गया, लॉस भी हो गया है, इवन देन ये सारे जो आइटम्स हैं या एक्सपेंसेस हैं ये आपको दिखाने ही पड़ेंगे। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जब हम लोगों ने क्लास 11th में पीएल अकाउंट जो मेंटेन किया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब मेंटेन किया गया था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने देखा होगा सैलरी लिखी थी हमने, और वेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में था। प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे ऑडिट फीस है, सो कुछ एक्सपेंसेस लिखे थे, वो जो एक्सपेंसेस थे उनका जो नेचर था वो चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट का था।
तो थोड़ा सा याद रखिएगा। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का जो ये तभी अलाउ करे जाएंगे जब फर्म को प्रॉफिट होगा। इसीलिए एक अलग से एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करने के लिए या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये वो एक्सपेंसेस है जो कंपलसरी पे होंगे, जिन्हें पे किया ही जाएगा चाहे लॉस ही क्यों ना आ जाए, चाहे करते करते मतलब लॉस ही क्यों ना आ जाए, लेकिन इनको हम पे करेंगे। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो आप पीछे जाके थोड़ा सा फिर से देख सकते हैं, इस अकाउंट का जो नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ये अकाउंट किस लिए बनाया जा रहा है? ये प्रॉफिट और लॉस को एप्रोप्रिएट या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाएगा। मतलब ये अकाउंट बनेगा ही तब जब प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो ये अकाउंट नहीं बनेगा। ये हमेशा से याद रखिएगा, क्योंकि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस मतलब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कॉमन सेंस अप्लाई करिएगा कि किसी पार्टनर ने लोन दिया है, उसको इंटरेस्ट पे करना है, तो ये जो एक्सपेंस है इसका नेचर क्या होगा? चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट का होगा या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का होगा? तो अभी सी बात है, पार्टनर ने लोन दिया है, लोन आप चाहे बैंक से लें या किसी थर्ड पर्सन से लें या पार्टनर से, इसका जो इंटरेस्ट है वो कंपलसरी पे करना पड़ेगा आपके फर्म को, पार्टनर को। मतलब फर्म पार्टनर को पे कंपलसरी पे करेगी, तो अभी से बात इसका नेचर कैसा हो जाएगा? इसका नेचर हो जाएगा चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट का। इसके बाद रेंट पेबल टू द पार्टनर। अगर मान लीजिए कोई फर्म है किसी पार्टनर की बिल्डिंग में काम कर रही है, मतलब जो बिजनेस है वो पार्टनर की ही बिल्डिंग है, तो अभी इसी बात है पार्टनर की बिल्डिंग हो या अगर आपने कोई दूसरी बिल्डिंग भी हायर करी होती, किराए पे ली होती, तो उस पर भी आपको रेंट पे करना पड़ता। तो इसका भी नेचर कैसा होगा? चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये जितने भी आप आइटम्स देख रहे हैं, जो एक्सपेंसेस देख रहे हैं, जिनके आगे नाम लिखा जा रहा है चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट, ये सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मैनेजर कमीशन, आपके बिजनेस कोई मैनेजर है काम कर रहा है, उसको आप कमीशन देते हैं, तो अभी सी बात है वो आपका एम्प्लॉय है, तो उसके आपको कमीशन पे करना ही पड़ेगा। डेट इज़ द चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट। यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सैलरी कमीशन टू पार्टनर। कोई पार्टनर है वो काम करता है, उसके बदले सैलरी लेता है या कमीशन चार्ज करता है, तो ये इसका नेचर क्या होना चाहिए? इसका नेचर चार्जेस अगेंस्ट, पर इसको कंपलसरी पे करना है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस किसका है? बिजनेस ओनर का है। ओनर यहाँ पर कौन है? पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स कभी नहीं चाहेंगे कि लॉस आए, तो ये याद रखिएगा। इसका जो नेचर होगा डेट इज़ द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये तभी दिया जाएगा सैलरी एंड कमीशन जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वहाँ पर ये नहीं पे किया जाएगा। या फिर बिल्कुल क्लियरली आप डीड में इसको मेंशन कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले बताया जा चुका कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई राइट्स नहीं है पार्टनर के। इट्स नॉट अ कंपलसरी कि एवरी टाइम द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ऑल्सो द कंडीशनल, ये भी कंडीशन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के अमाउंट पे डिसाइड करेगा कि प्रॉफिट हुआ है, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। तो नेचर कैसा हो गया? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू द रिजर्व, नाम से समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो जो प्रॉफिट होगा तभी तो रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब इससे बात है, इसका नेचर कैसा होगा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। थोड़ा सा याद भी कर लीजिएगा, 1 मार्क्स में आपके क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है। एक क्वेश्चन है, क्विकली सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। यहाँ पर मोहन एंड श्याम पार्टनर हैं फर्म में, जिसमें यहाँ पर आपको ये बताना है क्लेम आपका वैलिड है या इनवैलिड होगा। एक आंसर पहले ही आप देख चुके हैं, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट आंसर से ध्यान रखेंगे हम लोग। यहाँ पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड में जितने भी मैटर्स हैं, इस मैटर से रिलेटेड पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है। जैसे मोहन एक एक्टिव पार्टनर है और ये चाह रहे हैं कि सैलरी इनको 10,000 रुपये दी जाए। थोड़ा सा रिवाइज करिएगा और याद करिएगा क्या बताया गया था आपको। आपको बताया गया था कि
अगर डीड साइलेंट है, डीड में कहीं नहीं लिखा है कि सैलरी कितनी दी जानी है, नहीं दी जानी, और डिस्प्यूट हो गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनका क्लेम मोहन का इनवैलिड है, कोई भी सैलरी इनको नहीं दी जाएगी। श्याम है, उन्होंने उधार दिया है, क्लेम कर रहे हैं 10% पर एनम से इंटरेस्ट के लिए। डीड अगर साइलेंट है तो याद करिएगा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम, ना कि 10% पर एनम, तो ये भी इनका भी क्लेम इनवैलिड है। मोहन ने कंट्रीब्यूट किया 20,000 कैपिटल, श्याम ने कंट्रीब्यूट किया 50,000 कैपिटल। मोहन कह रहे हैं कि इक्वल शेयर प्रॉफिट में बांट दी, तो अब इसी बात है, मोहन सही कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि डीड अगर साइलेंट है तो PSR कैसा हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। तो इनका जो क्लेम है, इन्होंने जो इनका जो क्लेम है वो वैलिड है। श्याम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ये डिमांड कर रहे हैं कि 6% पर एनम से इनको इंटरेस्ट दे दिया जाए, लेकिन डीड जो है वो साइलेंट है इन दिस रिगार्ड। डीड अगर साइलेंट है इट मीन्स इन दिस केस इनका क्लेम जो है वो इनवैलिड है। एक ट्रू फॉल्स क्विकली सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको फटाफट समझ में आ जाए। एक वैलिड पार्टनरशिप कैन बी फॉर्मुलेटेड इवन विदाउट अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। क्या एक वैलिड पार्टनरशिप बगैर रिटन एग्रीमेंट के भी फॉर्मुलेट की जा सकती है? यस, बिल्कुल की जा सकती है। आप शुरुआत में जाके लेक्चर को देखिएगा। एग्रीमेंट कैन बी रिटन एंड ओरल ऑल्सो, रिटन भी हो सकता है या ओरल भी हो सकता है, तो यस इट कैन बी फॉर्मुलेटेड। सेकंड है ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर। एक पार्टनर प्रिंसिपल के रूप में भी काम करता है और एजेंट के रूप में भी काम करता है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल एजेंसी, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल एजेंसी, दिस इज द मेन फीचर ऑफ द पार्टनरशिप। इट्स अ ट्रू। मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स कैन बी 50, यस। Companies Act has given the power to the central government. The central government has prescribed the maximum number. Now the maximum number can be the 50 only. It's a true. Method of settlement of the dispute among the partner cannot be the part of the partnership deed. ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मेथड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट पार्टनरों के बीच में अगर मान लीजिए कोई मैटर को सेटल करना है तो क्या वो पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा जा सकता? ये क्वेश्चन रॉन्ग है बिल्कुल। देखिए पार्टनरशिप डीड किसकी है? पार्टनर्स की है। दे आर फ्री, वो लिख सकते हैं अपने पार्टनरशिप डीड में कि अगर कोई सेटलमेंट कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको कैसे सेटल करेंगे। दिस कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। तो ये सेंटेंस जो है ये फॉल्स है। डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम वुड बी चार्ज ऑन द ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर। फिर से देखिएगा जाके पीछे पॉज करके, डीड अगर साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है आपका। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी गिवन 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6% पर एनम से। अगर डीड साइलेंट है, डीड अगर साइलेंट है तो 6% 12% से नहीं मिलेगा बल्कि 6% पर एनम से उनको पे किया जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है आपका। सो